Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good. How's your preparation going on? Today I am here to discuss part 2 of super series of BPSC Project Manager exam which is going to be held on 3rd August. सो फ्रेंड्स अर्लियर मैंने सीरीज़ 1 जो है वो कवर किया है, उसमें 100 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर कर दिए हैं. तो जिन्होंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं उसको अटैम्प्ट करिए, बिकॉज उसमें मैंने सारे जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में एज पर द सिलेबस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कवर कर दिए हैं. नाउ इन टूडेज सीरीज आई विल कवर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. ये मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ सो मैनी पेपर्स, जिसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है. एंड इवन जो इसके आंसर्स हैं उसके लिए आप वरी मत कीजिए, बिकॉज ये आंसर जो है हमारी टीम पूरा रिसर्च करके प्रिपेयर करती है और ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो किया जाता है. एंड इवन ऑथेंटिक वेबसाइट जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया की, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं. मीन्स जो कमीशन में क्वेश्चन आए होते हैं, कमीशन ने जो आंसर दिए होते हैं उसको भी देके कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं. तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में एरर लगे तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. So aspirants, let's start with today's new question series. All the best to all of you. Question number 1. Who among the following has the credit of proposing the blueprint of Indian planning? So निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का प्रथम ब्लूप्रिंट प्रस्तावित करने का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शंस आर ए एम विश्वेश्वरैया, बी एन आर सरकार, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी, E none of the above or more than one of the above. So friends, try to attempt this question. Your time starts now. So answer is A M विश्वेश्वरैया. So friends, अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए पूरा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरा एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है फॉर द बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर. उसमें मैंने सारे प्लान जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया है. सो रेफर दैट वीडियो. Question number 2 is which of the following statement is not correct regarding the विश्वेश्वरैया plan? So इसमें से not correct आपको बताना है विश्वेश्वरैया plan से related. A is according to the विश्वेश्वरैया ideas of state planning were an exercise in democratic capitalism which is similar to USA. B option is in his idea of state planning the greater emphasis was on industrialization, a shift of labor from agrarian set up to the industries targeting to double national income in 1 decade. C is there was no follow-up by the British government on this plan. It aroused an urge for the national planning among the educated citizens of the country. D option is the ex-Diwan of Mysore state M. Vishwesharya in his book The Planned Economy of India published in 1934, and E is none of the above or more than one of the above. तो विश्वेश्वरैया योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई नन ऑफ द अबव. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग विश्वेश्वरैया प्लान एज इट इज. आप उसको यहाँ से लर्न कर लीजिए. Now come to question number 3. Which of the following statements are not correct regarding the FICCI's proposal for planning in India? So statement 1 is its president N.R. Sarkar proclaimed that the days of undiluted laissez-faire were gone forever, and for a backward country like India a comprehensive plan for economic development covering the whole gamut of economic activity was a necessity. Statement 2 is in 1944 a serious need of national planning was recommended by the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry and the leading organization of Indian capitalists. So options are A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2, E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Only 2 statement is not correct. So statement 1 जो है वो correct है and 2 is not correct. सो 2 में 1944 की जगह 1934 आएगा. सो 1934 में जो भारतीय पूंजीपतियों थे उन्होंने अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा राष्ट्रीय नियोजन की एक गंभीर आवश्यकता की सिफारिश की थी. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी वॉज सेटअप?
सो निम्नलिखित में से किस वर्ष युद्ध के बाद पूर्ण निर्माण समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस आर ए 1941, बी 1945, सी 1946, डी 1949, ई none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए 1941. सो कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई थी आफ्टर नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई थी, जिसकी वजह से फाउंडेशन हुआ था फॉर द कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड इवन जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी थी वो भी इन डेवलपमेंट्स के लिए बनाई गई थी. तो अर्ली जून 1941 में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई थी for consideration of various plans for the reconstruction of the economy of India. Question number 5th is, during 12th 5-year plan, which one of the following average annual growth rate target was envisaged for agriculture and allied sector? So 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस औसत वार्षिक विकास दर लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी? सो ऑप्शंस आर ए 3.0%, बी 3.5%, सी 4.0%, डी 4.5% एंड ई none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. Answer is सी 4.0%. तो ये फैक्ट है, आप इसको लर्न कर लो. ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे फैक्ट बेस के. Now question number 6 is the government policy Make in India aims at. So सरकार की जो नीति है मेक इन इंडिया, उसका मेन उद्देश्य क्या है? A is removal of bureaucratic sloth, B elimination of red tapeism, C reduction in the cost of manufacturing, and D is making the competitive product, and E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. So answer is E, more than one of the above. Question number 7th is, which one of the following is not an initiative for industrial development? So इसमें से औद्योगिक विकास के लिए एक पहल कौन सी नहीं है? ऑप्शंस आर ए मेक इन इंडिया, बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सी स्टार्टअप इंडिया, डी डिजिटल इंडिया एंड ई none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. Answer is D, Digital India. So Digital India is not an initiative for the industrial development. Others are the initiative for any industrial development in a country, like in India. Question number 8 is, who among the following has given the idea of self-help group as an effective tool for poverty alleviation? So निम्नलिखित में से किसने गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूह को एक प्रभावी उपकरण के रूप में विचार दिया है? ए अमर्त्य सेन, बी मोहम्मद यूनिस, सी एस चक्रवर्ती, डी रघुराम राजन, ई none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. This is very important question. Answer is B, मोहम्मद यूनिस. Question number 9 is, who among the following is the present CEO of नीति आयोग? So current based question है. अभी निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं? ए अमिताभ कांत, बी एस एस मुंद्रा, सी सारिस मिस्ट्री, डी सौम्या कांति घोष एंड ई none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A, अमिताभ कांत. सीईओ का नाम आप यहाँ से लर्न कर लेना, और चेयरमैन जो है वो पीएम ऑफ इंडिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी. क्वेश्चन नंबर 10 इज, एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो ऑप्शंस आर ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी शांता कुमार एंड डी शक्तिकांत दास. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी, शक्तिकांत दास. तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं ये कौन से नंबर के मीन्स कौन सी रैंक के ये गवर्नर हैं. सो ही इज 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई. क्वेश्चन नंबर 11 इज, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर एडवोकेटेड द पीपल्स प्लान? सो निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने पीपल्स प्लान की वकालत की? ए महालनोबिस,
बी जयप्रकाश नारायण, सी एम.एन. रॉय, डी श्रीमन नारायण अग्रवाल, E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C, M.N. Roy. Question number 12 is who among the following formulated the Gandhian plan? So इसमें से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? Options are A महात्मा गांधी, B श्रीमन नारायण अग्रवाल, C M.N. Roy, D Mahalanobis, E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. आंसर इज बी श्रीमन नारायण अग्रवाल. तो आप ये सारे नेम्स लर्न कर लेना अच्छे से, एग्जाम में जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होना. वीडियो को आप देख लेना एक दो बार, आपको लर्न हो जाएगा यहीं से. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से निगमन के संदर्भ में सही क्रम में है. ऑप्शंस आर ए बॉम्बे प्लान, गांधीन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, बी पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीन प्लान, सी इज सर्वोदय प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीन प्लान एंड पीपल्स प्लान, एंड डी इज गांधीन प्लान, सर्वोदय प्लान, बॉम्बे प्लान एंड पीपल्स प्लान, एंड ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो सबसे पहले जो है बॉम्बे प्लान प्रेजेंट किया गया था बाय 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे. ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो में आप देख लेना. ये 1944 में आया था. फिर उसके बाद आया था गांधीन प्लान 1944 में. श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है उन्होंने बनाया था, ये प्लान फॉर्मुलेट किया था. देन आफ्टर दैट पीपल्स प्लान आया था 1945 में, एंड इट वॉज अगेन फॉर्मुलेटेड बाय द रेडिकल ह्यूमैनिस्ट लीडर जो है M.N. रॉय, एंड इवन द चेयरमैन ऑफ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन थे ये. आफ्टर दैट सर्वोदय प्लान आया था. इसमें एनपीसी ने जो अपनी रिपोर्ट से पब्लिश की थी, और उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान्स के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया था ब्लूप्रिंट जो है फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप. So options are A 1950, B 1951, C 1952, D 1953, E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So अगस्त 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया था. कैसे? बाय रेजोल्यूशन 59 इशू किया गया था फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटरीट, और फर्स्ट प्लान रिकमेंड किया था एंड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट प्लान की, which was very concise and suitable observations were given about this plan. Question number 15 is the net value of GDP after deducting depreciation from the GDP is. So सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास हटाने के बाद सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध मूल्य है. ऑप्शंस आर ए नेट नेशनल प्रोडक्ट, बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, B disposable income, E none of the above. So try to attempt this question. This is concept based question. आपके यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. So answer is B net domestic product. So जब डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं from the charges of plant and the machinery from GDP, so we get the net value of GDP which is called as net domestic product. Question number 16 is when depreciation is deducted from the GNP gross national product, the net value is A net national product, B net domestic product, C gross national product, D disposable income, and E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. Answer is A net national product. सो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है इट इज द नेट वैल्यू ऑफ जीएनपी, दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज डिडक्टेड. एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेट करते हैं बाय डिडक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये आपको लर्न रखना है. और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे उसकी वैल्यू क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो उसकी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टेकन एट अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ दैट टाइम. क्वेश्चन नंबर 17 इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय. ऑप्शंस आर ए बैंक बोर्ड ब्यूरो,
B. Reserve Bank of India. C. Union Ministry of Finance. D. Management of concerned bank. E. None of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Bank Board Bureau. So जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, उनको कौन सेलेक्ट करते हैं? बैंक बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now come to question number 18. The economic cost of food grain to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus if any paid to the farmers plus. So आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो है फूड ग्रेन की, अगर उसमें FCI मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बोनस को मिला देती है तो वो फार्मर्स को क्या क्या इसके साथ देती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देती है ओनली. ऑप्शन बी इज इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली. सी प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. डी प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स. ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. सो फ्रेंड्स, इस बार MSP से जरूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट और ये साथ साथ डिटेल्स जो है नोट डाउन करते रहिए. वीडियो को बार बार सुनते हुए याद कर लेना सब. क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली. सो निम्नलिखित में से कौन पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है जो खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं? सो ऑप्शंस आर ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बी कमर्शियल पेपर, सी प्रोमिसरी नोट, डी पार्टिसिपेटरी नोट एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी पार्टिसिपेटरी नोट्स. सो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उसको पी नोट्स भी बोलते हैं, और जो ये पी नोट्स होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स और द हेज फंड्स टू इन्वेस्ट इन द इंडियन सिक्योरिटीज विदाउट हैविंग टू रजिस्टर विद द सेबी. तो इसमें सेबी के साथ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इसके थ्रू जो फंड्स हैं उसको इन्वेस्ट किया जाता है इन द इंडियन सिक्योरिटीज में. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. Question number 20 is which of the following statement is are correct regarding the purchasing power parity. So PP के लिए कौन सी statement correct है ये बताना है. One is purchasing power parity. Exchange rate are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries. Two is in terms of PP dollar. India is the third largest economy in the world. So options है A 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D neither 1 nor 2, E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C. Both 1 and 2 statements are correct regarding PPP. तो आपको अगर PPP के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ से पढ़ लो because it is very important topic for exam. Question number 21 is the money multiplier in an economy increases with which one of the following. So एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? A increase in the cash reserve ratio, B increase in the banking habit of the population, C is increase in the statutory liquidity ratio, D increase in population of the country, E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. Money multiplier जो है it is very important topic. Answer is B. Increase in banking habit of the population due to which there is an increase in the economy as a money multiplier. Question number 22 is which one of the following best describe the term merchant discount rate sometimes seen in the news. So merchant discount rate क्या है? A. The incentive given by the bank to a merchant for accepting the payment through debit card pertaining to that bank. B is the amount paid back by the bank to the customer when they use the debit card for financial transaction for purchasing goods or services. C is the charge to a merchant by a bank for accepting the payment from his customer through the bank debit card. D. The incentive given by the government to the merchant for promoting the digital payment by their customer through point of sale machine and debit card. E. None of the above. So try to attempt this question.
आंसर इज सी. सो सी स्टेटमेंट करेक्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के लिए. एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो रेट होता है जो चार्ज किया जाता है मर्चेंट को फॉर द पेमेंट प्रोसेसिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल डिजिटल इंडिया हो गया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूसेज जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. तो एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं. तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसको जो है ट्रांजेक्शनल डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, TDR भी बोलते हैं. और MDR जो होता है इट इज आल्सो गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ ईच सेल ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड. क्वेश्चन नंबर 23 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATM इन इंडिया. सो इसमें से कौन भारत में सभी ATM को जोड़ता है. ए, इंडियन बैंक एसोसिएशन. बी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI. डी, RBI Reserve Bank of India. E, none of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. Answer is C. So जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो लिंक करती है सभी ATMs को. Question number 24 is after Great Depression of 1929, who among the following suggested for strong state intervention? सो 1929 की महामंदी के बाद निम्नलिखित में से किसने मजबूत राज्य हस्तक्षेप का सुझाव दिया था. ए, एडम स्मिथ. बी, JM कीन्स. सी, पॉल सैमुअल्सन. डी, पॉल क्रूगर. ई, नन ऑफ द अबव और मोर देन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, JM कीन्स. क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. तो कौन सी करेक्ट नहीं है ये बताना है. रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. ए इज द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया हैज टू बी completed via 3 other processes: liberalization, privatization and globalization, popular by their short name LPG. B is precisely seen. Liberalization show the direction of reform, privatization show the path of reform, and globalization show the ultimate goal of the reform. C is the reform started in early 1990s in the field of industry, trade, investment, and later to include the agriculture were much wider and deeper. D is on July 23rd, 1991, India launches a process of economic reform in response to a fiscal and balance of payment BOP crisis. E, none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. नोट करेक्ट बताना है आपको. आंसर इज ई, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. सो FRBM एक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. ए, एलिमिनेटिंग बोथ रेवेन्यू डेफिसिट and fiscal deficit. B, giving the flexibility to the RBI for inflation management. C is Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in 2003. D is it aims to make the central government responsible for ensuring intergenerational equity in fiscal management and long-term macroeconomic stability. E, none of the above and more than one of the above. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. FRBM एक्ट से PT मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को. आंसर इज ए. सो ए स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज देर इज ओनली रिड्यूसिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट. सो बहुत नहीं है, ओनली फिजिकल डेफिसिट इसमें एलिमिनेट किया जाता है. एंड ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस एक्ट. तो आप एज इट इज इसको यहाँ से लर्न कर लेना. Come to question number 27. Financial market is classified into money market and capital market. Which of these are not correct money market instrument? तो आपको बताना है वित्तीय बाजार को मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में वर्गीकृत किया गया है. इसमें से कौन मुद्रा बाजार के साधन नहीं है. ए, ट्रेजरी बिल T बिल. बी, कॉल एंड नोटिस मनी. सी, कमर्शियल पेपर. डी, प्रेफरेंस शेयर. ई, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. प्रेफरेंस शेयर जो है इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट विच इज क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है. तो इसमें से जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है बिकॉज जो प्रेफरेंस शेयर है इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेयर कैपिटल मार्केट विच इज रेगुलेटेड बाय द SEBI, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अदर्स आर द
मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो आप इसको याद कर लो, ये पूछ सकते हैं पेपर में. ट्रेजरी बिल, कॉल एंड नोटिस मनी एंड कमर्शियल पेपर. क्वेश्चन नंबर 28 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट ऑफ 2020. Options are: one statement, it provided for the mechanism for resolution of pending tax dispute which are related to income tax and corporation tax. Two is the dispute involving the undisclosed foreign income or asset which are not covered under the said mechanism. So इसमें से correct statement बतानी है. A only one, B only two, C both one and two, D neither one nor two, and E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज सी. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आप इसको एज इट इज यहाँ से लर्न कर लो. अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. कम टू क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जीएसटी ई इनवॉइस सिस्टम. सो जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जाम. तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ए, प्रेजेंटली इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN कैन बी जनरेटेड ओनली बाय टैक्स पेयर whose turnover is more than 50 crore. B, each invoice uploaded by the taxpayer gets a unique invoice reference number IRN. C, unique invoice reference number IRN is of 64 character length. And D is all invoice information will be transferred from this portal to both the GST portal and e-way bill portal in real time. E, none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो ए स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है. अदर स्टेटमेंट को आप एज इट इज लर्न कर लो. ए में क्या गलत है? इसका जो टर्नओवर है वो मोर देन 500 करोड़ है, नॉट 50 करोड़. क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको. ए, अ पेमेंट यूजली जनरस मेड बाय द कंपनी to its employee for quitting the job prior to their service. B, an investment by a firm in a new manufacturing plant, workshop, office, etc. C is a large sum paid by the company to attract a new staff to its fold. D is a situation when increased interest rate lead to reduction in the private investment spending such that it dampen the initial increase of total investment spending. And E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So D statement is correct regarding the crowding out effect. तो ये क्या होता है? ऐसी स्थिति होती है जब ब्याज दरों से में जो वृद्धि होती है उससे निजी निवेश खर्च में कमी आ जाती है, जिससे कि जो कुल निवेश खर्च की प्रारंभिक वृद्धि है वो कम हो जाती है. Question number 31 is which of the following statement is are not correct regarding masala bond. So options are A, masala bond are rupee denominated bond. So आपको not correct बताना है. B, it is a debt instrument issued by an Indian equity in foreign market to raise the money in Indian currency instead of dollar or local denomination. C, 2019 Maharashtra became the first Indian state to issue the masala bond. D, the first masala bond was issued by the World Bank in 2014 to fund an infrastructure project in India. E, none of the above. So try to attempt this question. Your time starts now. This is very very important question. Answer is C. So other statements को तो आप as it is learn कर लो. C में क्या incorrect है? यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह क्या आएगा? केरला आएगा. So केरला जो है इसने फर्स्ट टाइम इशू किया था मसाला बॉन्ड. Question number 32. Laffer curve advocate a relationship between the two aggregate of an economy. So Laffer curve के लिए कौन सी statement correct है? A, average tax rate to total tax revenue. B, inflation and unemployment. C, demand and supply of money. D, supply of money and rate of interest. E, none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो लाफर कर्व क्या है? एवरेज टैक्स रेट टू द टोटल टैक्स रिवेन्यू. सो ये सारे कर्व्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको सारे कवर करा दूंगी यहाँ से. इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है. क्वेश्चन नंबर 33 इज एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट दैट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल. सो जो बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर ये इंगित करती है कि ब्याज की जो बाजार दर है वो गिरने की संभावना है.
सो ऑप्शंस आर किस केस में होता है, जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, बी व्हेन सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग द लोन टू कमर्शियल बैंक, सी इज कमर्शियल बैंक इज फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी, डी इज सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, इकोनॉमी में कुछ नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट्स है. अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गए, सारे बेस समझ आ गया, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन वहाँ पे. आंसर इज डी. सो जब बैंक रेट में जनरली इंक्रीज होता है, जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो मे बी फॉल कर जाए. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेंट्रल बैंक जो है इस केस में टाइट मनी पॉलिसी अपनी अप्लाई करता है. टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो बैंक रेट को बढ़ा जाता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाए और इससे इन्फ्लेशन भी जो है वो कंट्रोल हो जाता है. Question number 34 is the term marginal standing facility rate and net demand and time liability sometime appearing in the news are related with. So इसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में रहते हैं तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है. ऑप्शंस आर ए बैंकिंग ऑपरेशंस है, ये बी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है, सी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज है, डी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या ई नन ऑफ द अबव है. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is A. So these are the banking operations of the RBI. MSF क्या होता है? इसमें बैंक जो है वो बोरो करते हैं फ्रॉम द RBI इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, जब इंटर बैंक लिक्विडिटी जो है वो ड्राई अप हो जाती है कम्प्लीटली. जो ये MSF रेट होता है ये पैक टू 100 बेसिस पॉइंट होता है या परसेंटेज पॉइंट होता है अबव द रेपो रेट, तो ये रेपो रेट से ज़्यादा होता है. सो इसमें MSF में क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो फंड जो है वो बोरो करते हैं अप टू 1% of their net demand and time liabilities. Question number 35 is reverse repo rate is a tool used by the RBI. So reverse repo rate क्या है? इसमें क्या केस होता है कि ऑप्शन ए इज absorb the liquidity, B inject liquidity, C to keep the liquidity at one level, एंड डी इज न्यूट्रल लिक्विडिटी, एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ये टूल है जो आरबीआई यूज करती है फॉर लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए. सो सही ऑप्शन बताना है आपको. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो आरबीआई इसको जब लिक्विडिटी जो मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो इस केस में जो है रिवर्स रेपो रेट को यूज करती है टू ऑब्जॉर्व द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. तो ये बोथ टूल्स जो इम्पोर्टेंट है. रेपो रेट में क्या होता है, ये रेट होता है जिसमें जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो ग्रांट करता है लोन्स टू द कमर्शियल बैंक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. और रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, इसमें ये वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो लोन ग्रांट करते हैं टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई. और मेन पर्पस रेपो रेट का क्या होता है कि इसमें डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स को फुलफिल किया जाता है. और रिवर्स रेपो रेट में जैसे कि मैंने बताया टू इंश्योर द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. और ये रेपो रेट हमेशा हाई रहता है और रिवर्स रेपो रेट कंपैरेटिवली लेस रहता है. और रेपो रेट जो है आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में उसके लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया टू ऑब्जर्व द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेपो रेट है इसमें रीपरचेज एग्रीमेंट्स यूज होते हैं और रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट यूज होते हैं. तो ये मैंने आपको मेजर डिफरेंस बता दिए. इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट करना. क्वेश्चन नंबर 36 इज विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेपो रेट. तो यहाँ पर रेपो रेट का करेक्ट मीनिंग आपको बताना, मैंने आपको बता भी दिया है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को. ए इज व्हेन अ बैंक इज इन द नीड ऑफ कैश it can discount the bill of exchange and avail the loan facility from the RBI. And B is when a bank has excess of cash, they buy the security from the RBI against the cash on the condition that they resell the security to the RBI on a prefixed day and price. C is it is a rate at which the central bank of country RBI in case of India lend the money to commercial bank in the event of any shortfall of the fund. And D is it is a rate that is offered by the bank to their most value customer or prime customer. E none of the above or more than above. So try to attempt this question. Answer is C. So C statement सही है. जैसे कि मैंने बताया ये rate at which central bank of country RBI lend means देता है money to the commercial bank in the event of any shortfall of the funds.
नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आपको बताना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन कौन सा नहीं है। ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, बी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, सी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, डी इशुएंस ऑफ कॉइन्स, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, दैट इज इशुएंस ऑफ कॉइन। तो ये इशू ऑफ कॉइन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। अदर्स आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आप इसको याद कर लो। Question number 38 is who has the maximum intake in the total capital of NABARD? So NABARD की कुल पूंजी में सर्वाधिक सेवन किसके पास है? A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, B कंबाइंड इनटेक ऑफ कमर्शियल बैंक, C RBI, D बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. RBI जो है has the maximum intake in the total capital of NABARD. Question number 39 is who is responsible for the supply of coin in India? A Reserve Bank of India, B Ministry of Finance, C Ministry of Commerce and Industry, D Banker Association of India, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is Ministry of Finance. Question number 40 is when was the banking ombudsman scheme first introduced in India? So A 1995, B 1998, C 2001, D 2005, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is 1995. Question number 41 is how much interest is paid by the RBI on the money deposited under the CRR measure? So इसमें से करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शंस आर A equal to the rate of CRR, B more than the CRR, C less than the CRR, D no interest is paid by the RBI, and E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. So in this case no interest is paid by the RBI. Question number 42 is which of the following is not matched correctly above the नीति योग? So इसमें नीति योग से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? A नीति योग इज द हेड ऑफिस ऑफ दिल्ली में है, B नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन, C पेरेंट एजेंसी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, D नीति आयोग रिप्लेस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, E नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज D. सो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को नहीं किया है, बट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को किया है. Question number 43 is what is the India's rank of TRACE Global Business Bribery Risk 2020 report? So इंडिया की रैंक बतानी है आपको. A 77, B 55, C 105, D 139, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So इंडिया की रैंक याद रखना 77 है और स्कोर कितना है? 45 है. विच में और ये जो है रिलेटेड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ब्राइबरी रिस्क, और दिस लिस्ट इज बाय द ट्रेस जो कि एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है. तो ट्रेस इसका नाम है. एंड बिजनेस ब्राइबरी रिस्क जो है वो कितनी कंट्रीज में करती है मेजर? 194 कंट्रीज में. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ईयर डाटा टॉप पे जो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सुडान, वेनेजुएला, इसमें ज़्यादा हाईएस्ट कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क है. और कम सबसे कम जो है वो कौन सी कंट्रीज में? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन. सो टॉप और बॉटम याद कर लो. टॉप पे है डेनमार्क, मीन्स हाईएस्ट कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क यहाँ पे बहुत कम है, ब्राइबरी नहीं होती है. और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ कोरिया में. और इंडिया की रैंक है 77. क्वेश्चन नंबर 44 इज व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम अंडर द एनपीएस प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया? So options are A 65 year, B 70 years, C 80 years, D 60 years, and E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is A 65 years. Number 45 is which of the following term is also known as additive manufacturing? So इसमें से additive manufacturing से related क्या है? A 3D printing, B rapid prototyping, C internet of things added manufacturing, D blockchain technology, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A 3D printing. So additive manufacturing जो है इसको 3D printing भी बोलते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए,
जिससे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ लाइटर स्ट्रॉन्गर पार्ट एंड द सिस्टम जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 इज फूड कोलिशन टू प्रिवेंट द फूड क्राइसिस हैज बीन लॉन्च बाय. सो कौन लॉन्च करता है फूड कोलिशन को? ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी यूएसएड, सी वर्ल्ड बैंक, डी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. सो FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है. क्वेश्चन नंबर 47 इज टॉप टू टोटल इज एन इनिशिएटिव ऑफ. तो कौन सी मिनिस्ट्री का है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, डी एपीडा एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग. टॉप क्या है? टॉप जो है इट इज एन ऑपरेशन ग्रीन विच इज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2018-19 में आया था फॉर टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो के लिए. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है उसने रिसेंटली एक्सटेंड किया ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो से इसको फ्रूट्स और वेजिटेबल तक भी कर दिया. तो अब इसका क्या नाम हो गया? टोटल. सो ये टॉप टू टोटल हो गया. फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए किया ऑन द बेसिस ऑफ एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान. सो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्रेंड्स जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ही, बट फॉर BPSC एग्जाम एंड इवन UPSC एग्जाम और अदर स्टेट PCS एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखेंगे आपको, हर एक एग्जाम में आएंगे. तो आप इसको सीरियसली अटेम्प्ट करिए मेरे कहने से. क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो NIAF के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है. ए NIAF वॉज एस्टैब्लिश इन दिसंबर 2015 एज अ कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. बी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ 49% स्टेक इन NIAF. सी NIAF manages the master fund of funds and the strategic opportunity fund. D is it provide the long term capital to nation infrastructure sector from its about $4.3 billion corpus, and D is none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So all statements are correct. तो इसमें मैंने आपको पूरा नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो कवर कर दिया. तो एज इट इज आपको यहाँ से लर्न कर लेना है इसको. Question number 49 is a term technical recession is in the news which explain the following terms. So technical recession आपको बताना बहुत important है ये. A negative growth rate in the GDP that is gross domestic product in consecutive 3 quarters. B negative growth rate in GDP in consecutive 2 quarters. C negative growth rate in core sector of economy in 2 consecutive quarters. And D is negative growth rate in service sector in consecutive 3 quarters. And E is more than above or none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So technical recession में क्या होता है? Negative growth rate होता है in the GDP in consecutive 2 quarters में. Question number 50 is which of the following group is known as FAANG companies. तो इसमें से FAANG क्या है? A Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. B Ford, Alphabet, Airbnb, Netflix, Google. C Facebook, Adobe, Alphabet, Netflix, Google. D only Google and E none of the above. So try to attempt this question. इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं. आंसर इज A. So FAANG जो है वो Facebook, Apple, Amazon और Netflix एंड Google है. सो फ्रेंड्स अभी फर्स्ट हाफ जो है कंप्लीट हो गया. 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं. सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लेवल कैसा लग रहा है, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, आपका ये प्रैक्टिस के लिए टेस्ट मैंने बनाया है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सको. तो फ्रेंड्स इन कमिंग वीडियोस में आपको जैसे मैंने बोला है मैं आपको 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, तो मैं डेफिनेटली करूंगी और आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो. आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से क्वेश्चन आएगा. Question number 51 is which country slipped 7 notches in the World Bank ease of doing business. तो विश्व बैंक की ease of doing business में कौन सा देश जो है वो 7 पायदान फिसल गया है? A चाइना, B रशिया, C ऑस्ट्रेलिया, D कनाडा, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A चाइना.
Question number 52 is the central government approved a subsidy of to a sugar mill for the export of around 6 million ton sugar in the ongoing 2020-21 marketing session. तो आपको ये अमाउंट बताना है कि कितना सब्सिडी अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स के लिए फॉर एक्सपोर्ट के लिए. ए इज 3000 करोड़, बी 3500 करोड़, सी 4000 करोड़, डी इज 4500 करोड़, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 3500 करोड़. लर्न कर लीजिए आप इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. कौन सी सही नहीं है फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए. ए एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द ईपीएफओ रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑन ईयरली वेजेस लेस देन 15,000. B. Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana to boost the employment in the formal sector and to incentivize the creation of new employment opportunity during the COVID recovery phase under Atmanirbhar Bharat Package 3.0. C is under this Government of India will provide subsidy for 2 years in respect of new employees engaged on or after 1st October 2020 or up to 30th June 2021. And D is government will pay only employees share of EPF contribution of 12% of wages in respect of new employees in the establishment employing for more than 1000 employee for 2 years. And E is none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो ए जो है वो गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है. पहले तो आप ये आत्मनिर्भर भारत को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. ए स्टेटमेंट में क्या गलत है, यहाँ पर जो है मंथली आएगा, ईयरली वेजेस नहीं होता है इसमें, मंथली वेजेस होता है विच इज लेस देन 15,000. बाकी स्टेटमेंट्स को आप एज इट इज फैक्ट को लर्न कर लो, ऐसे एग्जाम में आएगा. क्वेश्चन नंबर 54 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज बीन included in the production linked incentive scheme announced in November 2020. So नवंबर 2020 में घोषित उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है. ए टेलीकम्युनिकेशन, बी टेक्सटाइल, सी वाइट गुड, डी स्पोर्ट्स गुड एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी स्पोर्ट्स गुड. तो स्पोर्ट्स गुड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, रेस्ट है, तो आप याद कर लो टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल है एंड वाइट गुड्स है. क्वेश्चन नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बेटर देन कैश अलायंस. तो इसमें सही कौन सी नहीं है. ए पार्टनरशिप है ये ऑफ ओवर 175 गवर्नमेंट कंपनी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की. इट इज बेस्ड इन द यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क. अलायंस सेक्रेटरीट जो है इसका वर्क करता है विद द मेंबर ऑन देयर जर्नी टू डिजिटाइज द पेमेंट बाय प्रोवाइडिंग द एडवाइजरी बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी. डी इज बेटर देन कैश अलायंस प्रोवाइड द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड इवन डेवलपमेंट कम्युनिटी the resources needed to transition to electronic payment. And D is none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So A जो है वो इसमें incorrect है, rest are correct. So A में क्या गलत है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो 75 गवर्नमेंट के, 175 नहीं है यहाँ पर. Question number 56 is which of the following Indian industry is facing the fresh probe for alleged cartelization by the top manufacturing companies. Options are iron and steel industry, B cement and C car manufacturing, D fertilizer industry and D is none of the above. So try to attempt this question. Answer is B cement industry. Question number 57 is Sweet Kranti mission is associated with A sugar, B honey production, C sweet meat production, D sweet potato production. So try to attempt this question. Answer is B honey production. So sweet kranti किसके लिए है, honey production के लिए. Question number 58 is iMobile Pay has been launched by A SBI, B HDFC Bank, C ICICI Bank एंड डी एक्सिस बैंक एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ऐसी ऐप जो है बैंक से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आता है इसमें, अटेम्प्ट करिए इसको. आंसर इज सी. तो इट इज द ऐप ऑफ आईसीआईसी बैंक. नाम याद रखना iMobile Pay. क्वेश्चन नंबर 59 इज एज अ आरबीआई डिसीजन रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट RTGS सिस्टम
allowed to work around the clock 24/7 will effect from. सो RTGS सिस्टम जो है वो अब 24/7 यूज होता है. तो ये कब से इफेक्ट में आया है? A December 1, 2020, B December 14, 2020, C January 1, 2021, D April 1, 2021 या E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B 14 December 2020 से आया है. RTGS सिस्टम जो है इट इज यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है. ये भी याद रखना. Question number 60 is transaction limit through contactless card has been extended from January 1, 2021. तो कितना एक्सटेंड कर दिया गया है जनवरी 1, 2021 से ट्रांजेक्शन लिमिट को? A contactless कार्ड के लिए 2000 to 5000, B 2000 to 7500, C 2000 to 10000 या D 2000 to 15000 या E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज 2000 से 5000 कर दिया गया है लिमिट जो है ट्रांजेक्शन की. क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो आपको नॉट करेक्ट बताना रिगार्डिंग इंडिया हैज मूव टुवर्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी. सो इट इंक्रीजिंग द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द इंडियन डेट मार्केट. बी इट इंट्रोड्यूस द फुली एक्सेसिबल रूट विच नॉन रेजिडेंट्स कैन इन्वेस्ट इन specified government security without any restriction. C is easing of the external commercial borrowing framework by relaxing the end user restriction. And D is outbound of FDI by the Indian incorporated entities which are allowed as a multiplier of their net worth. E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. सो नन ऑफ द अबव. इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट सही हैं. तो आप इसको लर्न कर लो कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 62 विच पुलिस स्टेशन हैज बीन जज एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ कंट्री इन ईयर 2020. ए द नोंग पोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन इन मणिपुर. बी इज खारसंग PS इन अरुणाचल प्रदेश चांगलांग डिस्ट्रिक्ट. सी इज Surmangalam all women police station at Salim in Tamil Nadu. And D is Kant Moradabad police station in Uttar Pradesh. And E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So Nongpok Sekmai police station Manipur जो है it is the best police station of country in year 2020. Question number 63 is which is the world first country to allow the production, sale and the consumption of lab created meat. A USA, B Singapore, C Finland, D Canada, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B Singapore. Question number 64 is over 50 years after the United States planted the first human flag on moon, which country became the second country to leave a flag on the lunar surface. Options are A India, B Germany, C China, D Japan and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So China का जो ambitious lunar mission Chang'e है वो successfully land हो गया on the moon on December 1, 2020 and it making the third time that country has placed a robotic spacecraft on the lunar surface. Come to question number 65. Which country is planning to formulate the policy on one nation one health system by 2030? Options are A Bangladesh, B Pakistan, C India, D Nepal, E none of the above. So try to attempt this question. ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आंसर है सी इंडिया. तो इसका आंसर इंडिया रहेगा, याद रखना एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट PM वाणी. तो PM वाणी के लिए कौन सी सही नहीं है? ए दिस पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस विल बी नोन एज PM वाणी. बी PM वाणी इकोसिस्टम विल बी ऑपरेटेड प्लेयर्स. सी रजिस्ट्रेशन वुड बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर द PDOs. D is proliferation of the public Wi-Fi will not only create the employment but also enhance the disposable income in the hand of small and medium entrepreneurs and even boost the GDP of the country. And E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. तो इसमें जो है C स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है.
फॉर द PDOs एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आप PM वानी को यहीं से याद कर लो. Question number 67 is India's first green energy convergence project has been launched in the state or union territory of A. Tamil Nadu, B. Himachal Pradesh, C. Goa, D. Puducherry, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is C. Goa. So Energy Efficiency Service Limited जो है एक joint venture है Ministry of Power का और Government of Goa का. Question number 68 is which country robotic probe returned successfully in the middle of December 2020 from moon with sample of rock from the moon surface. तो कौन सी चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने के साथ किस देश की रोबोटिक जान जो है वो दिसंबर 2020 के मध्य में चंद्रमा से सफलतापूर्वक लौटी है. ऑप्शंस आर A USA, B रशिया, C चाइना, D इंडिया एंड E none of the above. So try to answer this question. आंसर इज C, दैट इज चाइना. सो चाइना का जो चैंग्स 5 कैप्सूल है पैराशूटेड हुआ है वो 17 दिसंबर 2020 को टू अ लैंडिंग इन द इनर मंगोलिया कैरिंग द फर्स्ट लूनर सैंपल टू ब्रॉट टू द अर्थ इन मोर देन 40 years. क्वेश्चन नंबर 69 इज इंडियाज रैंक इन UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019. सो 2019 पूछ सकते हैं. A 129, B 131, C 130, D 130 सेकेंड या E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज B 131. सो इंडिया की रैंक कितनी है 131 है और इंडिया जो है वो अर्लियर रैंक उसकी 2019 में तो 131 है और 2018 में कितनी थी 129 थी. और इंडिया का जो HDI 2019 में कितना है 0.645. सो इंडिया जो है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है एट अ पोजीशन ऑफ 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज एंड टेरिटरीज. क्वेश्चन नंबर 70 इज इंदिरा रसोई योजना स्टार्टेड इन विच स्टेट. A राजस्थान, B पंजाब, C पुडुचेरी, D महाराष्ट्र, E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज A राजस्थान. सो राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है अगस्त 2020 में to provide the nutritious food to the poor and needy twice a day at a concessional rate. Question number 71 is Indian cricket team lowest score in the test match was in A 42nd at the Lord in 1974 against England, B 36 at Adelaide in 2020 against Australia, C 58 at Brisbane in 1947 against Australia, and D is 58 at Manchester in 1952 against England. So try to attempt this question. Answer is B. So India का कितना है लो स्कोर 36 at Adelaide in 2020 against Australia. Question number 72. Which country's parliament was dissolved in second fortnight of December 2020 before its due term? A Pakistan, B Nepal, C Bangladesh, D Italy and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B Nepal. Question number 73. Who won the BBC Sport Personality of the Year Prize 2020? A Lewis Hamilton, B Michael Schumacher and C Jordan Henderson and D Holly Doyle and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज A. लुइस हैमिल्टन जो है ये 7 टाइम फॉर्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं एंड इवन ही आल्सो क्लेमिंग द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर प्राइज ऑफ 2020. Question number 74. The evening sky over the northern hemisphere treated the stargazers to once in a lifetime illusion in December 21, 2020 as the solar system's two biggest planets appear to meet in a celestial alignment that astronomer called the Great Conjunction. So ये कौन से 2 प्लैनेट है ग्रेट कंजक्शन के लिए आपको नाम बताना है. A जुपिटर एंड सैटर्न, B अर्थ एंड मार्स, C मार्स एंड मर्करी, D मार्स एंड सैटर्न and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A Jupiter and Saturn. Question number 75 is the book The Battle of Belonging on Nationalism, Patriotism and What It Means to be Indian has been written by
ए राजदीप सरदेसाई, बी शशि थारूर, सी फारूक अब्दुल्ला, डी बरखा दत्ता, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी शशि थारूर. तो ये बुक जो है शशि थारूर की है. क्वेश्चन नंबर 76 इज सहतूत डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी तजाकिस्तान, डी नेपाल, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए अफगानिस्तान. सो दिस डैम विल प्रोवाइड द ड्रिंकिंग और इन्वायरमेंटल एंड इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करेगा. काबुल सिटी जो है अफगानिस्तान की, और ये जो है इंजीनियर्स ऑफ इंडिया जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ब्राउन कार्बन दैट इज टार बॉल. सो टार बॉल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. ए टार बॉल जो है दिस इज अ स्मॉल लाइट अब्जॉर्बिंग कार्बोनेशियस पार्टिकल which is formed due to the burning of biomass or fossil fuel. B, these are the deposits, snow and the ice. C, recently team of scientists from the Xinjiang University detected tar ball in a air sample which is taken at a remote high altitude research station in Himalayan Tibetan Plateau or northern slope of Himalaya. And D is they are found from the brown carbon emitted during the burning of fossil fuel. And D is none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. So none of the above is the answer. All statements are correct regarding the tar balls. Now question number 78, State of Food and Agriculture 2020 report published by which organization? A, Food and Agriculture Organization, B, UNICEF, C, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, D, MS Swaminathan Research Foundation, and E, none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO पब्लिश करती है फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका क्या नाम है, द टाइटल क्या है उसका, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर दैट इज सोफा 2020. और थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन द एग्रीकल्चर. क्वेश्चन नंबर 79 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनेस्को. ए, पन्ना टाइगर रिजर्व, B, Pin Valley National Park, C, Sheshachalam Hill Ranges, D, Sarchu and Kibber Wildlife Sanctuary, E, none of the above. So try to attempt this question. So answer is A, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है. क्वेश्चन नंबर 80 इज विच कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विल बी लॉन्च्ड इन 2021 से 2022 तक एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. A, Air India, B, Life Insurance Corporation, C, IDBI, D, Shipping Corporation of India, E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is B, Life Insurance Corporation. Question number 81 is the budget 2021 increases the FDI limit to 74% in insurance sector. What was the previous limit? तो पहले लिमिट कितनी थी, अब 74% हो गई है. A 62%, B 55%, C 49%, D 35%, E none of the above या more than above. So try to attempt this question. Answer is C 49% थी और अब 74% हो गई है इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट. Question number 82 is what is the budget 2021 allocation for the Indian Railway? A, rupee 1,10,055 crore, B, 2,15,000 crore, C, 1,41,000 crore, D, 3,05,984 crore या E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So A ऑप्शन करेक्ट है. फॉर इंडियन रेलवेज के लिए कितना किया गया है, 1,10,055 करोड़. क्वेश्चन नंबर 83, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ए, एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू हेल्प द रिफ्यूजी ऑफ सिविल वॉर. B, a global human rights movement. C, a non-governmental organization to help the people, voluntary, very poor people. D, intergovernmental agency to cater to medical emergency in war ravaged region. And E is none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So it is a global human rights movement. Question number 84 is Basel III Accord or simply Basel III seen in the news. So this is very important. यहाँ से क्वेश्चन आएगा.
A. Develop national strategy for conservation and sustainable use of biological diversity. B. To improve the banking sector ability to deal with the financial and economic stress. And C is reduce the greenhouse gas emission but places a heavier burden on developed country. D. Transfer technology from developed country to poor country to enable them to replace the use of chlorofluorocarbon in refrigeration with harmless chemical. And E is none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी. सो बी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. सो ये बेसल 3 अकॉर्ड क्या होता है? टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड टू इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 85. द फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन न्यूज में है. इट इज रिलेटेड विद आसियान, बी ब्रिक्स, सी OECD, डी WTO, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. सो इट इज रिलेटेड विद ब्रिक्स कंट्रीज. सो जो ये फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन है ये नेशनल जो डेवलपमेंट बैंक है उसके ऊपर स्ट्रेस करता है विच विल स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन अमंग द ब्रिक्स कंट्री एंड इट विल आल्सो सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ मल्टीनेशनल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करता है एंड फॉर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ द सस्टेनेबल एंड बैलेंस ग्रोथ. Number 86 is which one of the following issue the Global Economic Prospect Report periodically? A. Asian Development Bank, B. European Bank for Reconstruction and Development, C. US Federal Reserve Bank, D. World Bank, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is World Bank release करता है Global Economic Prospect Report periodically. Question number 87 is what is Rio Plus 20 conference often mentioned in the news? A. United Nations Conference on Sustainable Development, B. Ministerial meeting of the WTO, C. Conference of Intergovernmental Panel on Climate Change, and D is Conference of Member Country of Convention on Biological Diversity, and D none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So it is a United Nations Conference on Sustainable Development. Question number 88 is India's ranking in the ease of doing business index seen in the news. So which of the following has been declared this ranking? A. OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, B. World Economic Forum, C. World Bank, D. World Trade Organization, and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So World Bank जो है ease of doing business index जो है रिलीज करता है. So याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Question number 89 is which of the following is not a member of Gulf Cooperation Council? So GCC का काउंसिल का मेंबर कौन नहीं है? A. ईरान, B. सऊदी अरेबिया, C. ओमान, D. कुवैत, E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. ईरान. So GCC काउंसिल जो है ये रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनिट है विच इज कंसिस्ट ऑफ बहराइन है, इसमें कुवैत है, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE है और इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है. जो क्वेश्चन नंबर 90 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? ए. यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डी. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है. क्वेश्चन नंबर 91 इज बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम वाज पब्लिश फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ. तो वित्तीय वर्ष के लिए पहली बार बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था. A. 2004-05, B. 2006-07, C. 2008-09, D. 2009-10, and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी. सो 2006-07 में जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था. क्वेश्चन नंबर 92 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार स्टेट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2019-20? सो A 65%, B 67, C 68, D 70, E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज E none of the above. सो परसेंटेज जो पॉपुलेशन है
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन बिहार वो कितना है, अराउंड 80% है, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव है, विच इज मच हायर देन द नेशनल एवरेज. Question number 93 is Castor Silk Development Project has been approved at which of the following places? A. Begusarai, B. Kishanganj, C. Purnia, D. Katihar, and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So it is approved at Begusarai. Question number 94 is Lahat, Riga, and the Hasanpur are related to which industry? A. Jute, B. Sugar, C. Glass, D. Cotton textile, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. So it is related with sugar. Question number 95 is the implementing agency for Prime Minister Employment Generation Program is A. Udyog Mitra, B. SIPB, C. BIADA, and D. KVIC, and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is D. KVIC. That is Khadi Village Industrial Commission. Now question number 96 is Jute Park is being established at which place? A. Purnia, B. Katihar, C. Araria, D. Kishanganj, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Purnia. Question number 97 is Button industry is situated at which of the following places? A. Darbhanga, B. Beta, C. Mehsi, D. Katihar, and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is C. That is Mehsi. Question number 98 is first television station was set up in A. 1984, B. 1978, C. 1986, D. 1982, and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. That is 1978. Question number 99 is the project Arrow is related with which sector? A. Telecom, B. Post Office, C. Railway, D. Airways, and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So project Arrow किससे related है? Telecom sector से. So this is the last question of today's test series. Bihar Rural Road Development Agency BRRDA was established in which year? A. 2001, B. 2003, C. 2005, D. 2009, and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. That is 2003. So aspirant, this is all about today's test series. Hope so you all enjoyed this test series. So आप इसको अटेम्प्ट करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं. सो जितनी भी मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगी इन कमिंग वीडियोस, वहाँ से आपके अराउंड 110 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से कवर मीन्स एग्जाम में दिखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ. और बस आपको अब मैथ और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपको कवर करना है, 40 क्वेश्चन जो है, और बाकी जो रेस्ट 110 क्वेश्चन है वो मैं आपको कवर करा दूंगी. दैट्स माई प्रॉमिस. सो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन एस्पायरेंट्स तक पहुंचाना है जिसको इसकी ज़रूरत है और जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बीपीएससी एग्जाम और एनी अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड फॉर द बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.